Good afternoon, children. This is Push English and I'm Renuka Singh. In my previous video, I have already discussed the overview of the chapter, the details about the characters, about author, and now here I am to explain line to line the whole chapter. And you can see the chapter is quite lengthy, of almost 20 to 23 pages. So because I have already discussed about the dramatis personae, that is characters in the story, I will not touch it again. But yes, one important point which I really want to highlight is a question asked before we start the chapter is, should criminals in prison be given the opportunity of learning and education? Before reading the chapter, yes, your answer will be, I know your answer will be yes. But once you read the chapter, I'll ask this question to you in the end and then justify your answer by either saying yes or no with logic and instances and examples. So here is the story where all precautions have been taken just to brush up hurriedly that who are the characters. The main character is that of James Evans, whose full name is James Evans Roderick, and then is governor of the HM prison, the prison in which it is in Oxford, and the prison in which this prisoner has been jailed. And then there are two prison officers, Jackson and Mr. Stevens. Then there is an invigilator whose name is Reverend S. McClary, the Reverend S. McClary. His name is Stuart McClary. Okay, Stuart McClary. And then there are two people, Detective Superintendent and Detective Chief Inspector, Mr. Carter and Mr. Bell. And small appearance of the Secretary of the Examination Board, with whom the governor had a conversation. So all precautions have already been taken to see to it that the O-level German examination, this has to be highlighted, children. Normally what kind of examination Evans is giving, that is asked. इट इज़ ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन. तो ये एग्ज़ाम जो है इसका नाम ज़रूर आप याद रखेंगे. और ये अरेंजमेंट किया गया है प्रिजन में ही. क्यों प्रिजन में किया? लेट अस बिगिन विद द चैप्टर नाउ. It was in early March when the secretary of the examination board. So this man, what is the month? The month is early March, and the secretary of examination board, he has received a call from Oxford prison. And who is calling from Oxford prison? Governor is calling. तो गवर्नर जो है ऑक्सफोर्ड प्रिजन HM प्रिजन के, उन्होंने सेक्रेटरी को फ़ोन किया. एग्जामिनेशन बोर्ड की सेक्रेटरी हैं. और एक उन्होंने कहा कि ये बात बताई सेक्रेटरी ने कि भाई गवर्नर, आप थोड़ी सी अनयूजुअल सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम क्यों मदद ना करें, और एक ही आदमी तो है, आप जैसा बता रहे हैं एक ही आदमी है, मतलब एक ही कैंडिडेट है एग्ज़ाम देने के लिए, है ना? तो उन्होंने कहा हाँ एक ही है, और उसका नाम क्या है? चैप कॉल्ड इवांस. तो ये इवांस हमारे इवांस जेम्स रॉड्रिक हैं. और उसने नाइट क्लासेस ऑलरेडी शुरू कर दी हैं ओ लेवल की जर्मन की लास्ट सितंबर से. तो ऑलमोस्ट 6 मंथ से वो इसकी कोचिंग ले रहा है. ये नाइट क्लासेस इसको अरेंज कर दी गई हैं, सेल में ही वो ट्यूटर पढ़ाने आते हैं और वो पढ़ता है. तो ही इज़ डेड कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लाइन जब भी इवांस का कैरेक्टर स्केच आएगा तो आप उसमें ये बताएंगे, जिक्र करेंगे कि ही अपीयर्स टू बी डेड कीन to get some sort of academic qualification, and that is why he has started night classes in O level German from last 6 months. ऐसे लिख लोगे आप, ठीक है? तो उधर से उन्होंने पूछा कि भाई क्या कैसा है ये कैंडिडेट, अपना सही है स्टूडेंट ये? तो उन्होंने कहा हाँ क्लास में एक ही है तो कैसा होगा, नोबडी कैन से, बिकॉज ही इज़ हैविंग दैट इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम, सो देर इज़ नो चांस ऑफ कंपैरिजन. किससे कंपेयर करेंगे, क्लास में अकेला एक है तो. और ये भी सच है कि अगर इसने ये बाहर, यानी कि जेल से बाहर अगर पढ़ा होता जर्मन लैंग्वेज ओ लेवल का, तो उसको अच्छा खासा कॉस्ट किया होता. बट यहाँ पर जेल में इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. सो उन्होंने कहा तो आपको क्या लगता है कि लेट्स गिव हिम अ चांस, क्या हमें देना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, और जॉली काइंड ऑफ यू. तो यहाँ गवर्नर ने थैंक्स भी कहा सेक्रेटरी को, और उन्होंने पूछा कि प्रोसीजर है क्या, एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है, कैसे अप्लाई करे और कैसे क्या करे.
तो वहाँ से सेक्रेटरी ने उनको कंफर्म किया कि डोंट वरी, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगा, जो फॉर्म्स हैं, जो स्टफ्स हैं, वो सब भेज दूंगा, फिलहाल के लिए आप मुझे सिर्फ उसका नाम बता दीजिए पूरा। तब वहाँ पर उन्होंने इवांस का पूरा नाम बताया कि जेम्स रॉड्रिक इवांस उसका नाम है, और नाम सुन के लगता है कि काफ़ी ग्रैंड नाम है, रॉयल नेम है। और जस्ट वन थिंग गवर्नर बस, लेकिन सेक्रेटरी ने यहाँ पर उनको एक बात ध्यान रखने के लिए कही, और वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है वायलेंट किस्म का फेलो है, क्रिमिनल है, और मैं इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है, आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि कहीं बहुत हिंसक तो नहीं है, कहीं खतरनाक तो नहीं है। मुझे पूरा डिटेल नहीं चाहिए, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं चाहिए उसकी, लेकिन एटलीस्ट ये है कि बहुत हिंसक तो नहीं है। तो इधर से गवर्नर ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है वायलेंस का, इनफैक्ट बहुत ही प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, यानी बहुत ही अच्छे किस्म का, अच्छे स्वभाव का क्रिमिनल है ये, और बिट ऑफ अ कार्ड मतलब लिटिल क्रेजी, थोड़ा सा क्वैकी है। और और यहाँ पर उन्होंने पूरा इवांस की कुछ तारीफ की है, इवांस के बारे में बताया है गवर्नर ने सेक्रेटरी को, और यही उसके कैरेक्टर स्केच में भी आपके काम आ जाएगा। ठीक है, ये उसका कैरेक्टर स्केच जब भी आप डिस्क्राइब करेंगे सारे पॉइंट्स आप ले लेंगे, इनको प्लीज़ अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए हम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ही इज़ बिट ऑफ अ कार्ड। अब ये इनफैक्ट जब जेल में प्रिजन अथॉरिटीज जब कंसर्ट ऑर्गेनाइज करते हैं क्रिसमस में, तो ये उनका एक शाइनिंग स्टार होता है, और इमिटेशंस बहुत अच्छी करता है। इमिटेशंस का मतलब क्या होता है? मिमिक्री। इमिटेशन का मतलब होता है मिमिक्री, ठीक है, किसी की नकल उतारना। और खास करके माइक यारवुड स्टफ एक कॉमेडियन है, और माइक यारवुड की बहुत अच्छी नकल करता है ये, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसको, ये एक कंजेनाइटल क्लेप्टोमैनियक है। कंजेनाइटल क्लेप्टोमैनियक मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया भी है, सो दोज हु हैव नॉट सीन माय फर्स्ट वीडियो, प्लीज बिफोर सीइंग दिस वीडियो go and see my first video of this chapter, where I have discussed the overview and the डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ एवरी कैरेक्टर। तो खैर मैं शॉर्ट में बता दूं फटाफट आपको, बाय बर्थ जिन लोगों को ये बीमारी होती है, क्लेप्टोमैनियक एक डिजीज, एक मैनिया है, जिसमें आपको एक जुनून हो जाता है कि कोई खूबसूरत चीज़ें आपने देखी एंड यू वांट टू हैव ओन दैट थिंग, और आप उस चीज़ को पिकअप कर लेते हो, ले लेते हो। चुराना मकसद नहीं होता, चुरा करके बेचना, पैसे कमाना मकसद नहीं होता है, बट यू कैन नॉट रेजिस्ट दैट टेम्पटेशन टू ओन दैट वैल्यूएबल थिंग। इट कैन बी सिंपल पेन, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये क्लेप्टोमेनियक एक है, ठीक है। उसके बाद से गवर्नर जो है वॉज टेम्प्टेड टू, गवर्नर ने कुछ और भी ऐड करना चाहते थे इसके साथ, बट उन्हें लगा नहीं नहीं, उसका वो हिस्सा जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, सेक्रेटरी को वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये पर्टिकुलर साइड क्या है वो आपको आगे मिलेगा, पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग that he has to look after, that I'll discuss as we proceed in the chapter. Then presumably उन्होंने कहा सेक्रेटरी ने, तो ठीक है आप एक काम करिए, आप एक रूम अरेंज कर लीजिए। उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसका जो सेल है वही उसका एग्ज़ाम रूम रहेगा, और हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो वहाँ पर एग्ज़ाम दे ले, सेक्रेटरी ने कहा, और दैट्स फाइन। तो दोनों के बीच जो बातचीत हुई, बस इन्होंने बातों बातों में ये बता दिया सेक्रेटरी ने गवर्नर को कि पार्सन्स में से कोई एक पार्सन आ जाएगा सेंट मैरी मैक्स चर्च का एज एन इन्विजिलेटर, ड्यूटी में इन्विजिलेशन ड्यूटी करने, है ना। मतलब जब एग्ज़ाम ड्यूटी चलती है तो इन्विजिलेट करते हैं, एक एग्जामिनर आता है आपके यहाँ जो इन्विजिलेट करता है। और तो हम यहाँ पर थे कि सेंट मेरी मैक चर्च से एक पार्सन आएंगे और वो इन्विजिलेट करेंगे, और यही पार्सन है स्टुअर्ट मैकक्लेरी, जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया है कैरेक्टर स्केच बताते वक्त। तो खैर दोनों जो सेक्रेटरी हैं और गवर्नर हैं, उन दोनों के बीच जब बातचीत हुई उसके बाद दे जस्ट चक्ल्ड, दे लाफ्ड, और दोनों के बीच एक प्लेजेंट्री एक्सचेंज हुआ। एंड देन सेक्रेटरी ने कहा कि बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, गवर्नर से रिक्वेस्ट की, यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकेडो शुड यू, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इन कम्युनिकेडो का मतलब होता है टू बी टू लाइक नॉट अलाउ समबडी टू मीट समवन। तो थोड़ा जेल में रह करके इनको अलर्ट रहना पड़ेगा कि बहुत
इसके बाद से वो मिले जुले ना लोगों से, ज़्यादा कम्युनिकेशन ना हो ज़्यादा लोगों से। तो गवर्नर ने भी बहुत पोलाइटली हंसते हुए कहा एंड ही रिटरेटेड हिज थैंक्स, उन्होंने रिपीट किया और धीरे से फ़ोन को रख दिया। क्रेडल्ड का मतलब होता है प्लेस्ड, रख देना, है ना। अब इवांस की बात अगर हम सोचें तो वो सोचने लगे कि इवांस जो है, इवांस द ब्रेक, जैसे प्रिजन ऑफिसर इसका नाम जिन्होंने रखा था, कि ये 3 बार जेल से भाग चुका था और अभी जो रीसेंट वेव था अनरेस्ट का, यानी जो ज़्यादातर मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स यानी प्रिजन्स में जो एक अनरेस्ट था, एक जो उठापटक थी, जो एक माहौल ऐसा बना हुआ था नॉर्दर्न अथॉरिटीज़ में, नॉर्दर्न इस्टेब्लिशमेंट्स में, उसकी वजह से गवर्नर को इवांस को ऑक्सफोर्ड में रखना पड़ रहा था, अदरवाइज़ ये टेंशन ही नहीं होती। एंड गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टन दैट ही वुड नॉट बी डिसग्रेजिंग देम, और गवर्नर को ये इंश्योर करना था, या वो ये इंश्योर करेंगे कि ये बंदा जो है ही मतलब इवान उनको डिसग्रेस ना करे, कुछ ऐसा ना करे जो बड़ा शेमफुल हो। ऐसा नहीं कि इवान एक बर्डन था, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस थी वो कंटिन्यूस थी, परसिस्टेंट थी। नैगिंग का यहाँ मतलब है अनकंफर्टेबल, इरिटेटिंग, इरिटेशन से भरा हुआ। तो लेकिन कोई तो बात ऐसी थी जिससे वो अनकंफर्टेबल थे। तो और ही वुड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड, उनको लग रहा था कि ऑक्सफोर्ड में सही रहेगा। गवर्नर को बट इंश्योर करना पड़ेगा, पर्सनली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सच है कि पॉसिबिलिटी है कि इवांस फिर एक बार कोशिश करे भागने की, एस्केप करने की। और चूंकि वो ओ लेवल का जर्मन लैंग्वेज अभी सीख रहा था, तो यहाँ अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि क्या वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड था एकेडमिक क्वालिफिकेशन बढ़ाने में या नहीं। और पॉसिबिलिटी तो है ही है, चाहे भले ही स्लाइट पॉसिबिलिटी हो। खैर, कहानी जब आगे बढ़ती है तो उसमें 8:30 PM को मंडे 7th, ये डेट आपने याद रखना है बच्चों, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। 7 जून 8:30 PM पर इवांस के जर्मन टीचर जो उसको कोच ट्यूटर करने आते थे जेल में, उन्होंने हाथ मिलाया इवांस से। और इवांस कहाँ पर है, उसकी प्लेसमेंट देख लीजिए, किस जेल में ये हमें पता है, ही इज़ इन HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड। ये आप प्लीज़ डिटेल याद रखिएगा। सिर्फ प्रिजन और जेल लिखने से काम नहीं चलता है। ऑक्सफोर्ड में है और डी विंग में है। डी विंग के पास एक रिक्रिएशनल ब्लॉक है जो हेविली गार्डेड, हेविली सिक्योर्ड है, वहाँ पर है ये बंदा। गुटन ग्लक, उसके जर्मन टीचर ने हाथ मिला करके बोला। ये गुटन ग्लक का मतलब एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक। इवांस, का मतलब होता है मिस्टर इवांस। अब आप सोचिए, जो बंदा जर्मन पढ़ रहा है पिछले 6 महीनों से, उसको ये वर्ड नहीं समझ में आया, तो ये ध्यान रखना है आपने क्यों नहीं समझ में आया। उसने कहा पार्डन, उसने कहा अरे मैं गुड लक कह रहा हूँ तुमको कल के लिए। ओ थैंक यू। थोड़ी देर के बाद उसको रियलाइज़ हुआ, तो उसने कहा डांके शोन, यानी कि डांके शोन का मतलब होता है, ये भी एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है थैंक यू। ठीक है, तो हालांकि जर्मन टीचर ने कहा यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि यू टू बी कंप्लीटली अनेबल टू अचीव समथिंग। और यहाँ पर इसका मतलब है टू देर इज़ नो चांस, या स्लाइटेस्ट चांस भी नहीं है टू पास द एग्ज़ाम। ठीक है ना। तो यहाँ पर वो ये जानता है कि भैया उम्मीद तो नहीं है बंदा पास होगा, तो इवान इस पर जवाब देता है कि हो सकता है मैं सरप्राइज़ कर दूँ सबको। और अगली सुबह 8:30 पर 2 विजिटर्स और आते हैं उसके जेल में। और ये 2 विजिटर्स कौन है, एक है मिस्टर जैक्सन और दूसरा है मिस्टर स्टीफेंस। ठीक है ना। ये इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, दोनों के बारे में। और ये दोनों विजिटर, अब इन्होंने देखा है कि इवांस ने ही हैड टक्ड हिज ग्रबी स्ट्रिंग वेस्ट इनटू हिज इक्वली ग्रबी ट्राउजर। ग्रबी वर्ड 2 बार यूज़ हुआ है। ग्रबी का मतलब होता है डर्टी, ठीक है। टग का मतलब होता है पुश्ड, यानी उसने अपनी जो स्ट्रिंग वेस्ट थी, जो बनियान थी, वो उसने अपने पैंट के ट्राउजर्स के अंदर जो है पुश की, और बंक पे खड़ा हो गया जैसे उसने देखा। एंड ही वाज स्माइलिंग चेयरफुली, और मॉर्निंग कहा मिस्टर जैक्सन को, और कहा कि अरे ये ऑनर है कि आप मेरे सेल में आए। जैक्सन जो है कौन है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो ही इज़ अ सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग, ठीक है, इन HM प्रिजन। बस इतना डिस्क्रिप्शन के लिए काफ़ी है। और ये और इवांस, यानी जैक्सन और इवांस दोनों ही वॉर्म एनिमीज थे, यानी गर्मजोशी से मिलते ज़रूर थे लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन।
तो इधर जैक्सन के बगल में एक और ऑफिसर खड़ा था आज, ये कुछ नया सा बर्ली शर्ली लुकिंग मैन जो रिसेंटली रिक्रूट हुआ है इस प्रोफेशन में, यानी ये एक जूनियर प्रिजन ऑफिसर है। और बर्ली का मतलब होता है लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, शर्ली का मतलब होता है अनफ्रेंडली। तो एक्चुअली ये वर्ड्स को अगर आप क्या नाम है अलग अलग करो तो दोनों की मीनिंग बहुत अलग बनती है। बट यहाँ पर हम उनको ले सकते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव दिखने वाला और बहुत ही हुष्ट पुष्ट, बहुत ही तंदुरुस्त व्यक्ति। तो खैर जैक्सन ने बस सर हिलाया कर्टली और उसने कहा कि और हमारे लिटिल आइंस्टाइन कैसे हैं आज। ये लिटिल आइंस्टाइन सरकास्टिक रिमार्क है किसके लिए, इवांस के लिए। तो मिस्टर जैक्सन को, इवांस को ये अच्छा नहीं लगा जोक, लेकिन उसने कहा कि मिस्टर जैक्सन वो तो मैथमेटिशियन नहीं थे क्या। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने इस रेफरेंस में कहा कि वो एक ज्यू थे, आई थिंक ही वॉज अ ज्यू मिस्टर जैक्सन। ये भी मतलब ये दोनों डायलॉग ही इवांस के हैं, जिसमें इवांस उनको ये कह रहा है कि आप यहाँ आइंस्टाइन का नाम क्यों ले रहे हैं, वो तो मैथमेटिशियन थे और वो ज्यू थे। तो खैर शायद सरकास्टिक कमेंट था, वो अच्छा नहीं लगा इवांस को। खैर बात वहाँ बदल गई, उन्होंने देखा कि इवांस का चेहरा अभी अनशेवन है, इज नॉट शेव्ड हिज फेस, और बहुत ही फिल्दी लुकिंग एक रेड वाइट कलर का बॉबल हैट उसने डाला हुआ है। उन्होंने कहा मुझे एक चांस दीजिए मिस्टर जैक्सन, मैं बस जा कर के शेव करके आ रहा हूँ। आप अंदर आ रहे थे तो मैं शेव करने ही जा रहा था। तो इस पर उन्होंने कहा कि हाँ मुझे याद आया। जैक्सन तुरंत इवांस की तरफ घूमे और उन्होंने कहा कि धीरे से कहा उसको कि मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज फेस। मतलब जब ये अपना चेहरा साफ कर ले, स्क्रैपिंग का मतलब रिमूविंग द हेयर, यहाँ पर शेविंग है मतलब उसका। तो जब ये कर लेगा तो प्लीज़ इससे रेज़र ले लीजिएगा, अदरवाइज़ हो सकता है ये हम पर एक एहसान करे और कहीं अपनी ही गर्दन ना काट ले उसकी, उससे, या कुछ भी कर सकता है। उस रेज़र का यूज़ वो कैसे भी कर सकता है। तो रेज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है। कुछ सेकंड्स के लिए इवान ने थॉटफुली देखा जैक्सन की तरफ, और जो आदमी खड़ा था सामने, standing ramrod straight in front of him, a string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket। तो जैक्सन के पॉकेट के ऊपर आपने देखा होगा डेकोरेशंस लगे होते हैं जो डिफेंस सर्विसेज में होते हैं, पुलिस में होते हैं, या प्रिजन अथॉरिटीज़ में होते हैं, जो भी हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो मेडल्स लगे हुए थे वो देवर लाइंड अप, वो उसके ब्रेस्ट पॉकेट पे लगे हुए थे। रामरॉड का मतलब होता है अ स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर, हियर इट रेफर्स टू अ स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर। तो उसने देखा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है ये। जैक्सन को खैर बहुत पहले से भी जानता था ये, और तो उसने देखा, लेकिन उसके जो ब्रेस्ट पॉकेट पे जो मेडल्स लगे हुए थे उसको देखकर वो कुछ सोचकर रह गया। तो मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर्स अवे। उन्होंने पूछा कि मिस्टर जैक्सन आप मेरा नेल सीजर ले गए। नेल सीजर का मतलब होता है नेल कटर। और इवांस हमेशा अपने उंगलियों के बारे में बहुत कॉन्शियस रहता था कि उंगलियों में जो नाखून है वो बढ़ने ना पाए। तो उन्होंने कहा हाँ, और सरकास्टिक कमेंट करते हुए कहा कि हाँ मैं तुम्हारा नेल फाइल भी ले गया हूँ। जबकि नेल फाइल जो है नॉर्मली लेडीज़ यूज़ करती हैं, और नेल फाइलिंग जो होती है वो शेप करने के लिए होती है। नेल्स को जेंट्स नहीं यूज़ करते नॉर्मली, वो नेल कटर से उनका काम चल जाता है। तो खैर उसने एक और बार उसको एक पिंचिंग रिमार्क दिया ये। उन्होंने कहा कि लुक फॉर अ मोमेंट इवान्स आई स्मॉल्डर्ड। अब इवान्स को बुरा तो लग रहा था और वो समझ भी रहा था कि ये उसे भड़का रहा है। हिज आई स्मॉल्डर्ड, स्मॉल्डर्ड का मतलब होता है टू बर्न इन एंगर। लेकिन उसने बस घूरा, और जैक्सन भी तैयार था कि ये कुछ बोले तो मैं बोलूँगा। तो उसने वो झुका और ही जस्ट स्टेयर्ड एट हिम। और उसने कहा मैं क्या करूँ इवान्स, ये गवर्नर के ऑर्डर्स हैं, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। और उसकी आवाज़ थोड़ी सी कंटेम्पचुअस और हार्श विस्परिंग में बदल गई, और उसने कहा तुम कंप्लेन करना चाहते हो। इवांस ने अपने कंधे उचका दिए, नहीं, मतलब बात वहीं ख़त्म हो गई। अगर बात बढ़ाता तो शायद बात बढ़ती, वो बात बढ़ाना नहीं चाह रहा था शायद। और यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन अप योरसेल्फ। ने कहा कि तुम्हारे पास आधे घंटे हैं इवांस, फटाफट अपने आप को स्मार्ट कर लो, और ये जो हैट तुमने पहन रखी ना इसको हटा देना। तो उसने कहा ये हैट, उसने राइट हैंड से अपने लविंगली उस फिल्दी वुडन हैट को पकड़ा, और उसने कहा स्माइल भी कर रहा, और सैडली उसने कहा मिस्टर जैक्सन आपको पता है कि मेरी लाइफ में यही एक चीज़ ऐसी है जो थोड़ा सा लक लाती है, ये मेरे लिए लकी चार्म है। और मुझे लगता है आज, यानी कि आज एग्ज़ाम है मेरा, तो कहीं ना कहीं जैक्सन के, यानी वो चाहता था ये लकी चार्म उसके साथ रहे एग्ज़ाम देते वक्त।
तो जैक्सन के अंदर भी कहीं ना कहीं देयर वाज अ ह्यूमन बीइंग बuried इनसाइड हिम, तो ही हैड दैट टाइनी कोर ऑफ कंपैशन। उन्होंने वो, और इवांस ये जानता था, और वो जानता था कि ये जैक्सन इसके लिए अलाउ कर देगा, ठीक है। तो उसने कहा बस ये, जस्ट दिस वन, देन शर्ली टेम्पल। शर्ली टेम्पल एक्चुअली तो एक एक्ट्रेस है जो वेवी हेयर के लिए जानी जाती हैं, ठीक है ना, और अपने लंबे लंबे तो नहीं लेकिन हाँ घुंघराले बालों के लिए। तो यहाँ पर मेंशन इसलिए भी किया है, मैं बता दूं बच्चों, कि जैक्सन को बहुत नफरत थी, लोथ का मतलब होता है नफरत होना, हेटेड। इवांस के लंबे वेवी बाल उसके पसंद नहीं थे, और उसने कहा बस ये, मतलब ये बाल रहने दो और ये बोबल हैट, बाकी सब मैं शेव वेव कर लूँगा अच्छे से अगले दिन। अब बच्चों यहाँ तक जो है हमने कर लिया है, यहाँ मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी एट 8:45 से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। एंड प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, and God bless you all. If any doubt is there, please drop me in the comment box, and bye bye.